Good morning, everyone. We are starting this program from geography section of paper 1. So, in this we will discuss from the entire geography course from a question answer format. Okay. So, see, our first important topic is the plate tectonics. Right. We can expect the questions in mains from this part, plate tectonics. Okay? So, let's frame some questions which we can expect into the mains examination from this part. First question. Write on the question simultaneously. What do you mean by plates and how they forms various geophysical phenomena over Earth. This is the question. Right? So, look at the word first. Geophysical. I want to be very specific here. Geophysical. Geo means Earth. Physical means which you can see, which you can observe. These phenomena. So, in the question they can give you the substitute of this term like relief features, geographical features, topographical features. These terms can be used in substitute of geophysical. So, it is a broad term which includes all type of physical phenomena over Earth, right. Okay, so, that is the question. Now, in every question there are few keywords, entire question revolves around those keywords. So, we have to address those keywords in our answer and justify as per the demand of question. So, see, what do you mean by plates and how they, so it means the entire question is revolving around this key term plate. So, for it there is a need of a understanding of plate, what is plate. Then there is a need to understand what they do and what is the result of their doing, right. So, before coming to the structure of this question, let us understand the basics of this plate tectonics in brief, right. Because you are writing the main, so I hope some part you have already studied. So, see, first of all, come to this part, plates. So, how we define the plate? They are sections, or you can say parts of lithosphere which are floating over asthenosphere. This is the definition. So, any question come from the plate tectonics, in the beginning it is suggestible. In the introduction part it is itself, you should write this definition, right. So, they are the sections or parts of lithosphere which are floating over asthenosphere. So, two things here, lithosphere and asthenosphere. So, in the interior of the earth there is a clear understanding. Interior of earth there are layers, like this is the earth. In the interior part there are different layers, right. So, earth है, इसके अंदर क्या है, layers है, various layers है. So, on basis of chemical composition क्या क्या layers है बताओ. On the basis of chemical division क्या क्या layer है बोलो, जल्दी बोलो. Crust, फिर mantle और फिर core. Core has two parts, outer inner core, right. ये पढ़ा है हम लोगों ने. So, crust, mantle and core. Crust is the outermost part, mantle is the middle part, core is the innermost part. So, जो crust है that is lighter
हल्की है, दैट्स व्हाई इट इज अबव, तो ये ऊपर है, दिस अपर पार्ट इज द क्रस्ट ये, एंड दिस मिडिल पार्ट, बिग मिडिल पार्ट इज मेंटल एंड इनर मोस्ट पार्ट इज कोर, सो दिस इज आउटर कोर, ये पूरा मेंटल कॉन्स्टिट्यूट 84% वॉल्यूम ऑफ द अर्थ इंटीरियर, बिग वॉल्यूम, इजंट इट? सो क्रस्ट जो है क्या है, SiAl, सियाल, ये भी बोलते हैं, सो इट इज मेड अप ऑफ सिलिका प्लस एल्यूमिनियम। व्हाट इज मेंटल? मेंटल क्या है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम, सो इट इज कॉल्ड एज सीमा, Si फॉर सिलिका, Ma फॉर मैग्नीशियम। और कोर को क्या बोलते हैं, निफे, Ni फॉर निकल, Fe फॉर आयरन। सो आप इनकी डेंसिटी निकालोगे, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, निकल, so accordingly that crust is lighter, mantle is denser and core is further denser। तो ये तो केमिकली हम अर्थ को डिवाइड करते हैं, केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है, सिलिका एल्यूमिनियम, सिलिका मैग्नीशियम, आयरन निकल, बट हम अर्थ को इंटीरियर को फिजिकली भी डिवाइड करते हैं, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ। क्या क्या लेयर हैं बोलिए, 4 लेयर्स है, क्या क्या है, लिथोस्फीयर, सेकेंड asthenosphere, very good, asthenosphere, third mesosphere, very good, mesosphere, and then fourth barysphere, ये 4 लेयर है। सो लिथोस्फीयर इज द uppermost part, right, ये uppermost part है। सो इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, this figure we have understand, so suppose this is ocean, surface है, ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। कॉन्टिनेंट की रॉक किससे बनी होती है, ग्रेनाइट, so ये पार्ट है ग्रेनाइट का, ये पार्ट ओशन का फ्लोर किससे बना होता है, बसाल्ट का, BASALT, बसाल्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट थोड़ी थिक होती है, ओशनिक क्रस्ट थोड़ी थिन होती है। ओशनिक क्रस्ट कुड बी 10 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर इन डेप्थ, बट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ग्रेनाइट थोड़ा डीप होता है, 70 किलोमीटर, 60-80 किलोमीटर, लाइक दैट वे। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड एज क्रस्ट ऑफ अर्थ, बिलो इट दिस इज मेंटल ऑफ अर्थ, right, and below it this is, you can say, outer core, this is inner core, so overall you can say this is core, outer core is liquid, तो ये outer है, liquid है, inner is solid। so toward this side it is a chemical division, but what is physical division? physical में क्या division है, this part, entire crust plus somewhat upper part of mantle, इसको क्या बोलते हैं, lithosphere, ऐसे बोलते हैं। लिथो वर्ड मीन्स रॉक, रॉक का स्पीयर, सो इट इज हार्ड रिजिड पार्ट ऑफ अपर पार्ट ऑफ अर्थ, तो हार्ड है, रिजिड है, रूकी पार्ट है। ऑल्दो इट इज लाइटर एज कम्पेयर टू लोअर पार्ट, बट हार्ड है, जैसे पेन हार्ड है ना, इसकी रिजिडिटी, इसको दबाओ, ऐसे चेंज करो, शेप नहीं चेंज करता, दिस थिंग इज कॉल्ड एज रिजिड थिंग। बिलो दिस लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के नीचे क्या है, ये मटेरियल, दिस इज एस्थेनोस्फीयर, तो ये मटेरियल है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। तो इसमें जो वर्ड दिख रहा है एस्थेनो और स्फीयर, सो ये कैसा जोन होता है, इट इज ए, हाँ डेफिनेटली विस्कस जोन, नॉट प्योरली सॉलिड, नॉट प्योरली लिक्विड। उसके नीचे का ये पूरा बचा हुआ मेंटल क्या है, मीजो, मीजोस्फीयर, मीजो वर्ड का मतलब ही होता है मिडिल, सो मिडिल पार्ट, और ये जो पूरा रिमेनिंग आपका कोर है, दिस वन इज बैरिस्फीयर, बैरी मीन्स हॉट, लेटिन लैंग्वेज का वर्ड है बैरी, इसका मतलब होता है हॉट, हॉट स्फीयर, सो टेम्परेचर इज वेरी हाई, टेम्परेचर इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, राइट, बट ये केमिकल डिवीजन है, क्रस्ट में सिलिका एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिका मैग्नीशियम, कोर में आयरन निकल। सो अर्थ का ऐसे डिवीजन है, फिजिकल डिवीजन टुवर्ड दिस साइड, केमिकल डिवीजन टुवर्ड दिस साइड। सो ओवरऑल सी व्हाट हैपन, द मेन थिंग जो हम अर्थ के सरफेस पे देखते हैं, वॉट एवर लाइक माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, दैट इज ड्यू टू रिलेशनशिप बिटवीन द लिथोस्फीयर एंड एस्थेनोस्फीयर, बिकॉज मीजोस्फीयर, बेरिस्फीयर, मतलब लोअर मेंटल, अपर मेंटल, दे आर वेरी बिलो, उनका इम्पैक्ट ऊपर नहीं होता है, या कुछ बहुत नीचे हो तो उसका इम्पैक्ट बहुत नेग्लिजिबल या माइन्यूट होता है। तो मेन इम्पैक्ट इन दोनों का है, लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर का। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई अर्थ के अंदर, कैसी सिचुएशन हो गई, लाइक से दिस इज इंटीरियर पार्ट,
यहाँ पर ऊपर जैसे टेक ए एग्जाम्पल लाइक बकेट, सो ये कोई बकेट है दैट इज फिल्ड विद सम विस्कस सब्सटेंस, कोई विस्कस सब्सटेंस से फिल्ड है, विस्कस जैसे हनी विच इज नॉट परफेक्टली सॉलिड नॉट परफेक्टली लिक्विड, हनी के जैसा है, राइट। तो सो ये ऐसा सब्सटेंस है, इसके ऊपर कुछ लाइटर थिंग रख दे, जैसे ऐसे सम लाइटर वुडन ब्लॉक्स ऐसे रख दे, 2 3 4 5 व्हाटएवर, सो ये हल्के क्या है, वुडन ब्लॉक, सो एज दे आर लाइटर सो दे आर फ्लोटिंग ओवर हनी। सेम इज द सिचुएशन ऑफ इंटीरियर ऑफ अर्थ, सो इंटीरियर ऑफ अर्थ की भी ऐसी सिचुएशन है। इन द लोअर पार्ट व्हाट इज फिल्ड, दिस एस्थेनोस्फीयर इज फिल्ड, तो ये पार्ट है एस्थेनोस्फीयर which is viscous semi liquid, so viscous has semi liquid or semi solid you can say, above it our lithosphere is there, but this lithosphere is crack, ऐसे इसके टुकड़े हो रखे, crack into sections, these sections are called as lithospheric plates, understand। so ये basic understanding है। जैसे पानी की बाल्टी के ऊपर हल्के लाइटर वुडन ब्लॉक्स फ्लोट कर रहे हैं, पानी नहीं है परफेक्ट हनी जैसे सब्सटेंस है बट फ्लोटिंग करवाता है हनी भी विस्कस थिंग, ऐसे ही अर्थ के अंदर एस्थेनोस्फीयर इज विस्कस थिंग, ओवर इट लाइटर लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर फ्लोटिंग। सो ये लिथोस्फीयर पूरा क्रस्ट से बना है प्लस अपर 100 किलोमीटर पार्ट ऑफ मेंटल है, सो रफली लिथोस्फीयर की जो डेप्थ होती है वो 200 किलोमीटर के आसपास है सरफेस से, सो ये 200 किलोमीटर का एक पार्ट हो गया 0 to 200, ऐसे वुडन ब्लॉक की तरह से रिजिड, ऐसे जिनका शेप चेंज करना मुश्किल है, दैट इज फ्लोटिंग ओवर दिस एस्थेनोस्फीयर, सो दीज सेक्शंस आर कॉल्ड एज प्लेट्स, अंडरस्टैंड व्हाट आर प्लेट। सो इन आवर डेफिनेशन वी हैव रिटन दिस थिंग, व्हाट आर प्लेट्स, प्लेट्स आर sections or parts of lithosphere which is floating over asthenosphere। तो जब भी कभी कोई भी क्वेश्चन प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड या प्लेट से रिलेटेड आए, इन द बिगिनिंग यू शुड राइट दिस डेफिनेशन, राइट। एंड यू कैन मेक a small diagram here, like say this is a one section, suppose this is some other section, this is some third section, they are floating over this substance। तो छोटा डायग्राम बनाना है ऐसे, अंडरस्टैंड, डिड यू गेट इट, ओके। तो ये तो प्लेट की अंडरस्टैंडिंग है। अब देखो इन प्लेट को थोड़ा और डिटेल से पढ़ें। सो नाउ सी द टाइप्स ऑफ प्लेट, तो हम टाइप्स ऑफ प्लेट पर आते, कैसी कैसी प्लेट्स होती, टाइप्स ऑफ प्लेट्स। देखो बसाल्ट ही पूछ रहे, बसाल्ट और ग्रेनाइट की। सो एक सब्सटेंस है बसाल्ट, दूसरा है ग्रेनाइट। रॉक्स को जब आप लोग पढ़ते हैं, रॉक्स भी आएगा, उससे भी क्वेश्चन फ्रेम करेंगे। रॉक्स पढ़ते हैं, बोथ आर इग्नियस, इग्नियस रॉक्स हैं, ओके। सो जो बसाल्ट होता है इसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंटेंट, जो अर्थ के अंदर हमने क्या पढ़ा, सियाल सीमा, तो मेन कंपोनेंट क्या है अपर पार्ट ऑफ अर्थ में, सिलिका। सिलिका क्या होता है, ओर ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन है SI, इसका ओर है सिलिका, राइट। तो सिलिका जो है इजिली रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ सिलिकॉन डाइऑक्साइड बना लेता है। सो सिलिकॉन डाइऑक्साइड कंटेंट इज लेस, SiO2 इज लेस देन 40%, 40% से कम है मैग्मा में। SiO2 इज लेस देन 40% इन मैग्मा। बट ग्रेनाइट में क्या होता है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज मोर देन 60% इन मैग्मा। तो अर्थ के अंदर से जो मटेरियल बाहर आएगा फ्लूइडिक फॉर्म में, वही तो मैग्मा होता है। ये देखो मैग्मा है, बाहर आ जाएगा तो लावा, अंदर ही है तो मैग्मा। जब ये मैग्मा सॉलिडिफाई होगा तभी तो रॉक्स बनेंगी। तो ग्रेनाइट और बसाल्ट इसी मैग्मा के डिपोजिशन से बनी है, दैट्स व्हाई देयर इग्नियस रॉक, राइट। तो इसमें जो बसाल्ट है इसमें सिलिकॉन डाइऑक्साइड कम है, ग्रेनाइट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। तो ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कम है, इसकी मतलब है कि सम अदर सब्स्टिट्यूट और अदर सब्सटेंस रिप्लेस सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कोई सब्स्टिट्यूट होगा। व्हाट इज दैट, आयरन इज मोर। अर्थ के अंदर और क्या है, मैग्नीशियम है, आयरन है, यही तो है ना। सो आयरन और यू कैन से मैग्नीशियम इज मोर,
but in it silica is more, so iron is less. Iron and magnesium is less, comparatively less है. समझ गए? अब आप ही मुझे बता दो कौन सी डेंसर है, बसाल्ट या ग्रेनाइट? विच इज डेंसर? बसाल्ट, क्योंकि बसाल्ट में किसका कंटेंट ज़्यादा है? आयरन का, विच इज मोर डेंसर. इसमें सिलिका का कंटेंट है, दैट इज लाइटर. तो जो बसाल्ट होती है ये डेंसर होती है, बट ग्रेनाइट है ये क्या है? लाइटर है. इसीलिए तो लाइटर सब्सटेंस अर्थ के ऊपर आ जाएगा, जब रॉक्स बनेंगे ऊपर आ जाएगा, डेंसर नीचे रहेगा, लाइटर ऊपर, डेंसर नीचे, लाइक दिस वे. दिस इज शेप ऑफ अर्थ. अर्थ का ऐसा शेप है, अप डाउन अप डाउन. सो ये जो लोअर पार्ट है, दीज आर मेड अप ऑफ बसाल्ट रॉक, ये बसाल्ट से बने हैं. बट जो अपर पार्ट है, बिकॉज लाइटर थिंग जो होगी वो ऊपर उठ जाएगी, लाइटर थिंग्स हैज ए टेंडेंसी टू राइज, सो दिस इज ग्रेनाइट. ये ग्रेनाइट है. ये देखिए ये ग्रेनाइट हो गया. सो जो अपलिफ्टेड पार्ट्स हैं, दीज आर ग्रेनाइट्स, ये ग्रेनाइट. बट विच आर लोअर पार्ट, जो ऐसे देखिए नीचे की तरफ है, दीज आर योर बसाल्ट, ये बसाल्ट है. और फिर अर्थ के अंदर मेंटल को और दीज थिंग्स आर देयर. मेंटल में भी इग्नियस रॉक है, पीरियोडोटाइट है, ओलिविन है, गैब्रो है, दीज आर देयर. बट अर्थ के आउटर पार्ट में ग्रेनाइट और बसाल्ट है. अब अर्थ का एटमॉस्फेयर बनता है टाइम के साथ साथ, और ये जो डिप्रेशंस हैं, इन डिप्रेशंस में क्या फिल हो जाता है टाइम के साथ? वाटर. तो ये क्या बन गए अर्थ के? क्या बन गए? ओशियंस. देखो ऐसे. तो अर्थ का बिल्कुल परफेक्ट शेप नहीं है स्फेरिकल. अगर ओशियंस को खाली कर देंगे तो ऐसा शेप आएगा. तो ये ओशियंस हैं. इसलिए ओशियंस के नीचे की रॉक किससे बनी हुई है? बसाल्ट से. बट जो कॉन्टिनेंट हैं उनके नीचे की रॉक किससे बनी है? ग्रेनाइट से. ग्रेनाइट इज लाइटर इसलिए ऊंचा है, बसाल्ट इज डेंसर इसलिए नीचा है. दैट्स व्हाई ओशियंस आर बिलो, कॉन्टिनेंट्स आर अबव. अंडरस्टैंड? इसीलिए. तो ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. रॉक्स में भी ये क्वेश्चन आएगा दोबारा, तो वहाँ और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे. बट हेयर वी आर कंसर्न्ड अबाउट द प्लेट्स, राइट. तो आपका ये जो कॉन्टिनेंट ओशन की फ्लोर है, दोनों मिला लो, क्रस्ट है, और मेंटल का अपर पार्ट जोड़ दीजिए, उसमें ऐड कर दीजिए, दैट इज लिथोस्फीयर. सो दिस लिथोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू सेक्शंस. दीज सेक्शंस आर कॉल्ड एज प्लेट्स. ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ प्लेट. तो अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेट. इस पार्ट को डील करते हैं सो दैट वी आर इन पोजीशन टू आंसर दैट क्वेश्चन. शुड वी स्टार्ट नाउ? ओके, सो सी टाइप्स ऑफ प्लेट. Types of plate or plates you can say. So on two bases we can classify the plates. Two bases पे classify करते हैं. क्या? On basis of size. Second is on basis of you can say composition or movement composition, means which side they are moving and what is the composition. Okay, so on basis of size we have two type of plate. One is called as major plate, second is called as minor plate, right. But on basis of movement or composition we have further two types of plate. One is oceanic plate, second is कॉन्टिनेंटल प्लेट. ये देखिए दो तरह की प्लेट है, ओशनिक प्लेट एंड कॉन्टिनेंटल प्लेट. ओके, सो लेट्स फर्स्ट सी द डिफरेंस बिटवीन मेजर माइनर, देन वी विल कम टू दैट पार्ट. क्या हो गया? ओशनिक प्लेट और कॉन्टिनेंटल प्लेट. ओशनिक है, कॉन्टिनेंटल है.
और उधर है मेजर माइनर। हैं उधर चलते हैं, उधर ही करते हैं। अरे लाइट लाइट चलेगी, चलो उधर ही चलते, क्या कर, इधर नहीं चलेगा। इसको बंद करिए, चलो करंट चला गया ना।